Hello friends, myself Vishal Kumar Yadav and today we will talk about the principle of least action, its principle and its proof and Hamiltonian for a charged particle in an electromagnetic field. So पहले हम प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन को जानने से पहले यह जानते हैं कि एक्शन ऑफ सिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो यदि हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट करें और अगर इस काइनेटिक एनर्जी टी का ट्वाइस करें मीन्स 2t लें और अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी का टाइम इंटीग्रल करें बिटवीन लिमिट्स t1 टू t2 तो जो इंटीग्रल होगा उसे हम एक्शन ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। So first we can see definition of action of a system. So the time integral of twice of kinetic energy T is known as the action A. This is our equation number first. So mathematically we can write it A is equal to integration of T1 to T2 2T into dt. Okay, but we know that the Hamiltonian of any system H is equal to T plus V. Here T is the kinetic energy and V is the potential energy. So now we can say that the Hamiltonian of any system is the summation of kinetic energy and potential energy, and the Hamiltonian of any system is the total power of that system. And similarly we can see here the Lagrangian L is the difference of kinetic energy and potential energy. Okay, the value of L is equal to T minus E. So when we add the Hamiltonian and the Lagrangian of any system, so the summation of H plus S L is equal to T plus V plus T minus V. Here V cancel out, so we will get the value of H plus L is equal to 2T. Okay, and from equation number first, when we put the value of 2T, we can see here in equation first 2T, but we find H plus the value of H plus L is equal to 2T. So we will put the value of 2T is equal to H plus L in equation number first. So from equation number first we get the value of A is equal to T1 integration to T1 to T2 L plus H into dt. Okay, 2T 2T H plus L plus H into dt. This is our equation number second. But we know that the basic function of Hamiltonian in terms of Lagrangian L is H is equal to summation I pi qi dot minus L. Then we will write it जब हम L को पक्षांतर करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी H प्लस L की और यह होगी H प्लस L इज इक्वल टू समेसन I pi qi dot. So from equation number second, when we put H plus L, when we put the value of H plus L is in equation second, we will get from equation number second A is equal to integration of T1 to T2 H plus L plus H is equal to summation I pi qi dot. So we will put here pi qi dot into dt. Okay, and this is our action of the system. Okay, and here we can see pi is the generalized momenta and qi dot is the generalized velocity. Now next we can see principle of least action. Okay, so
दिस इज़ अवर प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। और यह हमें कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक्शन ए में डेल्टा वेरिएशन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ओके, so the definition of principle of least action is according to the principle of least action for a conservative system, delta A is equal to delta integration t1 to t2 summation I pi qi dot dt is equal to 0. So the delta A is equal to 0, and this is our principle of least action. But here यहाँ पर एक चीज़ और होती है सिस्टम की, जिसे हम एक्शन इंटीग्रल कहते हैं, और इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सो द एक्शन इंटीग्रल ऑफ एनी सिस्टम इज एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 to t2 l into dt. This is our equation number 2. And now our next topic is proof of least action. So the action integral as is given by as is equal to integration of t1 to t2 l into dt. This is our equation number 1. And इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा वेरिएशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड वी कैन सी हियर L is equal to Lagrangian of the system. So जब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ डेल्टा वेरिएशन अप्लाई करेंगे तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 into L dt. This is our equation number 2. But we know that in classical mechanics there are two types of variation. Our first variation is delta variation, and our second variation is del variation. Okay, and इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है और इनके बीच एक रिलेशन होता है। ओके, तो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो वी नो डेट डेल्टा इज इक्वल टू डेल प्लस डेल्टा टी इंटू डी अपॉन डी टी. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के RHS साइड में हम इस डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, हमारी डेल्टा की वैल्यू है डेल प्लस डेल्टा टी इंटू डी अपॉन डी टी, और हमारा LHS साइड सेम एज इट इज रहेगा। सो यूजिंग इक्वेशन 3 इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट डेल्टा एस को हम डेल्टा एस लिखे हैं बराबर, यहाँ हम डेल्टा की वैल्यू को पुट कर दिए हैं। हमारे डेल्टा की वैल्यू है ये, इसे हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं, और ये वाला टर्म्स हम लोग का एज इट इज है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों इस डेल्टा को इसके साथ और ये डेल्टा टी इंटू डी अपॉन डी टी को इस टर्म के साथ अलग अलग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट डेल प्लस डेल्टा टी इंटू डी अपॉन डी टी ब्रैकेट क्लोज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 L into dt. Okay, now next we get the value of delta S is equal to delta integration of t1 to t2 L dt plus delta t dt into integration of t1 to t2 L into dt. Now next the value of delta S is equal to t1 to t2 del L dt plus integration t1 to t2 del t d upon dt into L dt. Okay, we can see here dt and dt are cancelled out to each other,
and finally we get the value of delta s is equal to integration t1 to t2 del l plus integration t1 to t2 del t delta t into d और एंड एल। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस एल के दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो रहा है। ओके, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 del l। ओके, हियर क्यू के एंड क्यू के डॉट इज द फंक्शन ऑफ एल। ओके, यहाँ पर क्यू के जो फंक्शन है उसे हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहते हैं, और जो यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन है क्यू के डॉट उसे हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम डेल एल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर हम इस डेल एल की वैल्यू को किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ देखते हैं कि एल दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हम पाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पर करेंगे एल का विथ रेस्पेक्ट टू इस एल का यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू के, और उसके बाद फिर क्यू के का डेल्टा वेरिएशन करेंगे, प्लस फिर एल का पार्शियल, इस एल का पार्शियल डिफरेंशियल होगा विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल्स जो कि क्यू के डॉट है। ओके, फिर हम क्यू के डॉट का यहाँ पर डेल वेरिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल क्यू के डॉट। ओके, तो सो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ delta s is equal to integration t1 to t2 summation k। okay, we can see here why we will write here summation k। यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, summation k लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर k इंडिसेस में यहाँ पर स्थित है। ओके, k यहाँ पर इंडिसेस में है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर summation k का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू मिलेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 टू t2 समेशन के इन ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए डी एल डिवाइडेड बाय डी क्यू के इंटू डेल क्यू के प्लस डी एल डिवाइडेड बाय डी क्यू के डॉट इंटू डेल क्यू के डॉट। यहाँ पर हम लोग देखें कि हम इसे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एल का विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के हमने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन किए हैं। एल का क्यू के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेशन किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, क्यू के का डेल वेरिएशन कर दिया। ओके, क्यू के का डेल वेरिएशन कर दिया है। उसके बाद प्लस साइन के साथ हमने फिर से इस एल का यहाँ पर क्या किया है, इस एल का हमने यहाँ पर डिफरेंशियल किया है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर से इस क्यू के डॉट का यहाँ पर डेल के साथ यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है इनटू में डी टी प्लस। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो d है और ये जो इंटीग्रेशन है दिस आर कैंसल आउट टू ईच अदर, एंड फाइनली वी विल गेट l डेल t, और इसकी जो हमारी लिमिट प्राप्त होगी वो t1 से t2 तक होगी, और इसे हम हमारा इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। ओके, so according to Lagrange equation of motion we have d upon dt del L upon del QK dot bracket close minus del L upon del QK is equal to 0।
ओके, इतना होता है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पक्ष को इधर पक्षांतर कर दिया है, तो हमें मिला है टी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। But we know that del L upon del Qk dot is equal to Pk. This is our equation number 5. So we put d upon dt Pk is equal to del L upon में del Qk, and this is our equation number 2. ओके, हम यहाँ पर से क्या जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, यहाँ पर पी के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या कर दी, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने इसके जगह में पी के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो हमें मिला है डी अपॉन डी टी इन ब्रैकेट पी के इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के। यही हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डेल क्यू के डॉट इज इक्वल टू, ओके, ये हमारा कहाँ से आया है, ये हमारा आया है, ये डेल क्यू के डॉट हमारा जो आया है वो आया है यहाँ से डेल क्यू के डॉट से। सो हम लोग यहाँ पर डेल क्यू के डॉट को लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में डॉट है तो इस डॉट का मतलब होता है डी अपॉन डी टी। ओके, तो हम लोग डेल क्यू के डॉट को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी डेल क्यू के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से डेल क्यू के डॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, अब उसके बाद है यहाँ पर डी एल अपॉन डी क्यू के लिखा है, इसके जगह में हम यहाँ पर डेल एल अपॉन डेल क्यू के की जगह में डी अपॉन डी टी पी के को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट द वैल्यू ऑफ del s is equal to integration of t1 to t2 summation k in bracket d by dt pk del qk plus pk d by dt del qk bracket close into dt plus l into del t with limit t1 to t2। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है और ये हमारा सेकंड पोर्शन है। तो दिस इज़ अवर u एंड दिस इज़ अवर v। तो हम जानते हैं कि u इंटू वी का ये जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है u डी बाई डी टी वी प्लस वी डी बाई डी टी यू। ओके, तो जब हम इस फॉर्मूला को इस जगह में प्लेस करेंगे तब हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, जब हम u के जगह में यहाँ पर इस डेल क्यू के को रखेंगे और यहाँ पर v के जगह में जब हम लोग यहाँ पर पी के को रखेंगे और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब हमें यही वैल्यू यहाँ पर से पुट होगी, फाइंड होगी। ओके, so now next we get the value of del s is equal to integration t1 to t2 summation k d by dt in bracket pk dot del qk। अब इसको हमने यहाँ पर d by dt pk dot del qk लिख दिया है। ओके, इंटू dt प्लस l इंटू del t with limit t1 to t2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 है। बट we know that here the delta qk, ओके, द डेल्टा क्यू, यहाँ से हमको क्या करना है, डेल क्यू के की वैल्यू को यहाँ पर से हमको निकालनी है। तो डेल क्यू के की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिए हैं, क्यू के को लिए हैं। ओके, और क्यू के
साथ हमने यहाँ पर क्या लिया है, डेल्टा लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा इज इक्वल टू डेल प्लस डेल्टा टी इंटू डी बाई डी टी इतना होता है। तो हमने क्या किया है, इस पूरे के साथ यहाँ पर क्यू के का मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी डेल प्लस डेल्टा टी डी बाई डी टी पूरे के साथ यहाँ पर क्यू के का वैल्यू। ये हमारा डेल्टा का वैल्यू है और ये हमारा हो गया क्यू के। ओके, तो हमने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेल क्यू के बराबर हमने इसका क्या किया है, अंदर में यहाँ पर दोनों के साथ गुणा कर दिया है। तब हमें डेल क्यू के बराबर मिलता है, डेल्टा क्यू के बराबर मिलता है डेल क्यू के प्लस डेल्टा टी डी बाई टी टी क्यू के। और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू डेल क्यू के प्लस डेल्टा टी क्यू के डॉट। ओके, इसे हमने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हमने क्यू के का टी के रेस्पेक्ट हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो हम इसे क्यू के डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम चूँकि हमें यहाँ क्या करना है, हमें डेल क्यू के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम ये सब प्रोसेस यहाँ पर अपना रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तक हमने देख चुका था। अब इसके आगे देखने से देखते हैं हम लोग इसको यही रहने देते हैं और इस वाले टर्म्स को इधर हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो हमें यहाँ पर डेल क्यू के की वैल्यू मिलती है डेल्टा क्यू के माइनस डेल्टा टी इंटू क्यू के डॉट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हमें यहाँ पर पी के डॉट डेल क्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पी के का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में पी के का दोनों साइड में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, मल्टीप्लाई विथ पी के, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है पी के इन ब्रैकेट डेल क्यू के इज इक्वल टू पी के इन ब्रैकेट डेल्टा क्यू के माइनस पी के डेल्टा टी क्यू के डॉट। So from this is our equation number 9 and from equation number 8. Okay, from equation number 8 हम यहाँ देखते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 to T2 समेशन के डी टी पी के डेल्टा क्यू के माइनस यहाँ पर हमने डेल्टा क्यू के की वैल्यू को पी के डेल्टा क्यू के की वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, यहाँ से हमने पी के डॉट डेल्टा क्यू के की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है इसके जगह में, इनटू के साथ यहाँ पर डी टी प्लस एल डी टी विथ लिमिट T1 to T2, एल डी टी विथ लिमिट T1 to T2। ओके, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं डेल्टा एज इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमने क्या किया है, हम डी बाई डी टी और ये हमारा जो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिलता है समेसन डेल्टा एज इज इक्वल टू समेसन के पी के डेल्टा क्यू के विथ लिमिट T1 to T2 माइनस, अब ये जो समेशन के है वो इसके साथ भी आएगा, तो हमें मिलेगा समेशन के इन ब्रैकेट डेल्टा टी पी के क्यू के डॉट विथ लिमिट T1 to T2 प्लस एल डेल्टा टी विथ लिमिट T1 to T2। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल क्यू के की जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पर जो डेल क्यू के की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, वो यहाँ पर हमारी 0 है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लोग इन तीनों में से किसी भी रास्ते से होकर जा सकते हैं। ओके, तो जब
हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाते हैं, तो माना कि यहाँ पर पॉइंट ए में हमारी जो टाइम है t1 है और पॉइंट बी में हमारी जो टाइम है वो t2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू के की जो वैल्यू होती है वो इंड पॉइंट पे, कहने का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जब रहेगा तब उसकी डेल्टा क्यू के की वैल्यू क्या होती है, वो 0 के बराबर होती है। और ये वेरी तो करेगा, लेकिन वेरी कब करता है ये, जब हम ए से बी की ओर क्या करेंगे, जब जाते हैं तभी जाके इसकी वैल्यू हमारी कैरी वेरी होता है। लेकिन एट end of point at point A and point B, the value of डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। तो जब हम इस डेल्टा क्यू के की जगह में जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस समेसन के इन ब्रैकेट डेल्टा टी पी के क्यू के डॉट विथ लिमिट t1 to t2 प्लस एल डेल्टा टी इन ब्रैकेट t1 to t2। ओके, तो हमने इसी को यहीं पर लिखा है कि हमारा जो डेल्टा क्यू के विथ लिमिट t1 to t2 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है एट इंड पॉइंट। ओके, एंड दिस ए एंड बी आर आवर इंड पॉइंट, एंड इट इज varies only with when we goes to point A to B. Okay, so finally we will get the value of delta S is equal to with minus sign in bracket समेसन के। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि समेसन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर कॉमन आउट है। यहाँ पर देखते हैं डेल्टा टी और डेल्टा टी यहाँ पर हमारा कॉमन है, दोनों में जो लिमिट है t1 to t2 ये हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन है। और यहाँ से हमने क्या किया है, माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन निकाल दिया है। तो हमें मिलता है ब्रैकेट के अंदर में समेसन ऑफ के पी के क्यू के डॉट, और यहाँ से हमने माइनस साइन बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। अब यहाँ से हमने डेल्टा टी और डेल्टा टी को बाहर कॉमन निकाल दिया है, और इस पूरे का हमें लिमिट मिलता है t1 to t2, एंड दिस इज आवर ये हमारा क्या है, एक तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। ओके, तो हम लोग जानते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा पूरा क्या है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि डेल्टा इंटीग्रेशन t1 to t2 एल डी टी इज इक्वल टू माइनस एच डेल्टा टी विथ लिमिट t1 to t2। इस पूरे पोर्शन को हमने क्या किया है, यहाँ पर h के बराबर लिख दिया है। ये पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर h हो गया है। तो ये माइनस का माइनस साइन, ये पूरा पोर्शन हमारा हैमिल्टोनियन h है, यहाँ पर ये डेल टी है, विथ लिमिट क्या है t1 to t2 है। ओके, तो अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं, जो s है, s की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 l इंटू डी टी। ओके, तो हमने यहाँ पर इस s की वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, और ये हमारा हो गया यहाँ पर डेल्टा का साइन, और इस वाले टर्म्स को मैंने जैसे कि यहाँ पर पहले बता दिया कि हमारा h है, ये विथ माइनस साइन है, ये डेल्टा टी है, विथ लिमिट t1 to t2 है। अब हम क्या करते हैं, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो लिमिट जो था t1 to t2 इसे हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया है। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन को बाहर निकाल दिया है, और ये जो लिमिट था t1 से t2 इसको हमने विथ इंटीग्रेशन के साथ लिया है। ओके, यहाँ पर h हो गया। अब यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन आया है तो यहाँ पर हमें एक डी लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा टी। ओके, तो ये वाला जो टर्म्स है ये इसी का ही क्या है, इसी का ही इंटीग्रेशन फॉर्म है। ओके, तो हमें इस तरीके से ये वाला टर्म्स मिलता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 एल डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 एच डी टी। ओके, यहाँ पर हमें ये दोनों टर्म्स प्राप्त हो गए। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस टर्म्स को मैंने इधर यहाँ पर क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा डेल्टा
इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 L dt, इधर आया तो प्लस, तो सो प्लस डेल्टा इंटीग्रेशन T1 to T2 H प्लस H इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है, एच है, बाकी ऑल द टर्म्स यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बाकी टर्म्स को कॉमन ले लिया है, तो हमें मिलता है डेल्टा इंटीग्रेशन T1 to T2 L प्लस एच इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो L प्लस एच की वैल्यू होती है वो समेशन ऑफ के पी के क्यू के डॉट के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर L प्लस एच की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। ये हमारा L प्लस एच का यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर हमने L प्लस एच की जगह में लिख दिया है समेशन के पी के क्यू के डॉट इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। सो द अबव एक्सप्रेशन इज अवर प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एक्शन यहाँ पर से प्रूफ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हैमिल्टोनियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं in this case Lagrangian is given by L is equal to T minus Q in bracket phi minus 1 upon C V into A। ओके, ये हमारा क्या है, Lagrangian है, Lagrangian ऑफ एनी सिस्टम है। तो हम इसे लिख सकते हैं L is equal to summation J half M V J square minus Q in bracket phi minus phi समेशन ऑफ जे वी जे एच ए अपॉन सी। और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इन ये हमारा क्या है, इन जेट कोऑर्डिनेट मोमेंटा इज गिवन बाय, ओके, पी जे इज इक्वल टू करली एल डिवाइडेड बाय करली ए जे इज इक्वल टू करली एल डिवाइडेड बाय करली वी जे इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एम वी जे प्लस क्यू अपॉन सी ए जे। So putting in Hamiltonian, we get H is equal to summation of J Pj Qj dot minus L, and we will get the value of H is equal to summation J Vj in bracket M Vj plus Q upon C Aj minus L। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया है, Pj की वैल्यू को यहाँ पर से हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ओके, सो we will get the value of H is equal to summation of J M Vj square, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो Vj square प्लस summation of J Q C, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो Vj इंटू Aj माइनस L। तो हम इसे लिख सकते हैं H is equal to M V square प्लस Q अपॉन C V इंटू J माइनस L। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि H इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 2t प्लस क्यू अपॉन सी वी इंटू ए माइनस टी माइनस क्यू इन ब्रैकेट 5 माइनस 1 अपॉन सी वी इंटू ए। ओके, तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू h की वैल्यू फाइंड आउट होगी और हमें प्राप्त होगा h इज इक्वल टू 2t प्लस क्यू अपॉन सी वी इंटू ए माइनस साइन के साथ अंदर में सभी के साथ ये गुणा हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ माइनस टी प्लस क्यू फाइव माइनस क्यू अपॉन सी वी इंटू ए। तो फाइनली हमें प्राप्त होता है एच की वैल्यू, एच इज इक्वल टू टी प्लस क्यू फाइव। तो हम इसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस क्यू फाइव। और यही हमारा क्या है, और यही जो है यही हमारा हैमिल्टोनियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल है, किसके लिए, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, सो इस तरीके से आज का मेरा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।